Hello guys, welcome to my channel Knowledge Hub. Guys, in my previous video of SO means analysis, I have briefly discussed the questions which were asked in the exam. And now in this video, I will also provide the answers of all the questions with detailed explanation. So guys, watch the video till the end so that you can get all the information, as this video would be very helpful for those who are preparing for the upcoming IT exams. So let's start the session. So the first question is related to cryptography. The question was the key length in DES is. So the answer is 56 bit. Guys, as you know, in cryptography there are two techniques we use for encryption and decryption. First is symmetric key cryptography and second one is asymmetric key cryptography. सो गाइस, जो DES है, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम है और इसमें हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की का यूज़ करते हैं. एंड द क्वेश्चन था कि उसकी जो की लेंथ होती है जो हम यूज़ करते हैं वो कितनी होती है, तो डेट इज़ 56 बिट, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू DBMS. द क्वेश्चन वॉज the attribute whose value is obtained from other attribute is called. The answer is derived attribute. Guys, derived attribute वो attribute होता है जिसकी वैल्यू आप किसी another attribute से obtain करते हो. Like जैसे you have date of birth, so you can find the age from date of birth. So here age जो है वो आपका derived attribute है. Okay. So the next question is related to BitLocker. So BitLocker क्या है? ये एक एनक्रिप्शन फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का. So the answer is encryption. The next question is related to HTML and the question is which tag is used to create table. So guys, this is very simple and easiest question and the answer is table tag. The next question is Hyper-V is a product of. हाइपर वर्चुअलाइजेशन जो है ये किसका प्रोडक्ट है? ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. सो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्लासफुल एड्रेसिंग. द क्वेश्चन इज इन IPv4 क्लास C व्हाट इज द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट? एंड द आंसर इज 192 to 223. ये गाइस क्लास C की रेंज है. एज यू नो देयर आर 5 क्लासेस इन क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लास A, B, C, D एंड E. सो जो रेंज होती है वो 0 से लेके 255 होती है जिसको कि 5 क्लासेस में डिवाइड किया है. सो क्लास A की रेंज होती है 0 to 127, क्लास B की 128 to 191, क्लास C की होती है 192 to 223 एंड क्लास D की 224 to 239 एंड क्लास E की 240 to 255. Next question is related to protocol. SMTP uses which protocol of transport layer? The answer is TCP, Transmission Control Protocol. As you know, transport layer पे mainly 2 protocols use होते हैं, TCP and UDP. So SMTP जो कि ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हमको रिलायबिलिटी चाहिए, तो TCP आपका रिलायबल प्रोटोकॉल है. सो SMTP आपका TCP यूज़ करता है, ना कि UDP. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन C टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज. द आंसर इज कंडीशनल ऑपरेटर. सो गाइस, नीचे इसका सिंबल भी दिया है, क्वेश्चन मार्क एंड देन कोलन. ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है इट वर्क्स लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट. जैसे आपकी इफ एल्स वर्क करती है वैसे ही ये कंडीशनल ऑपरेटर भी वर्क करता है. एंड गाइस, इस पर आपको एक प्रोग्राम भी आया था जिसमें कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया था. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? द आंसर इज ट्री. एज यू नो देयर आर 2 types of data structure, linear data structure and second one is non-linear data structure. तो linear data structure में आपके पास आता है array, linked list, stack and queue. and non-linear data structure में tree,
graph and dictionary. So the answer is tree. The next question is related to microprocessor. The number of pins in Intel 8089 input-output processor is. The answer is 40 pins. Next question is related to C language. The reserved words in C are called. The answer is keywords. जो पहले से वर्ड्स डिफाइन होते हैं C में उनको हम keywords बोलते हैं, right? The next question is related to OOPS concept. The question is the method in which we define one type in terms of other type is. So the options were inheritance, class, object, polymorphism and encapsulation. तो गाइस इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे घुमा के पूछा है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए. बट यहाँ पे आप देखो कि क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन तो इसका आंसर हो नहीं सकता. सो आपके पास इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसमें से एक आंसर है इसका. सो एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, वैसे तो इसका आंसर पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, बट स्टिल मुझे इसमें थोड़ा डाउट है गाइस. तो एक बार आप इसको कंफर्म करना, इन कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर टाइप करना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो तो क्वेश्चन जो था आपका शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स पे था. एक टेबल गिवन था जिसमें शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक्स के वैल्यूज़ दे रखे थे. तो इस टाइप का क्वेश्चन था. एंड एक क्वेश्चन आपका फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड था. ओके गाइस. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफसेट रिलेटेड क्वेश्चन. एक्चुअली गाइस आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एग्जैक्टली. सो क्वेश्चन जो था वो ऑफसेट से रिलेटेड था. एंड द ऑप्शंस जो थे उसमें कोल्ड साइट, हॉट साइट, बेक साइट एंड वार्म साइट. एंड गाइस जिसको भी क्वेश्चन याद है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बाइनरी सर्च ट्री. सो हेयर आपको पोस्ट ऑर्डर गिवन था एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्री ऑर्डर. सो द मेन पॉइंट क्या था इसमें कि यहाँ पे आपको एक ऑर्डर गिवन था. एंड गाइस कोई भी ऑर्डर निकालना है तो यू शुड हैव 2 ऑर्डर्स. अगर आपको 2 ऑर्डर्स गिवन है ओनली देन यू कैन फाइंड द थर्ड ऑर्डर. बट यहाँ पे आपको पोस्ट ऑर्डर गिवन था और प्री ऑर्डर फाइंड आउट करना था. सो बाइनरी सर्च ट्री की मेन प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इन ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर होता है वो असेंडिंग एरे होता है. तो यहाँ पे जो आपको पोस्ट ऑर्डर गिवन था उससे आप इन ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते थे. जस्ट आपको एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था. सो आपके पास पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर आ जाना था. देन आपको एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना था और विद द हेल्प ऑफ ट्री यू कैन ईजिली फाइंड द प्री ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज dirty bit is used to identify. So the answer is page which is modified after being loaded into the memory. जो dirty bit होता है ये modified page के लिए यूज़ किया जाता है, right? Next question is related to CISC. CISC क्या है? Complex Instruction Set Computer. एक होता है RISC और एक होता है CISC. और गाइस इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन थी एंड आपको आई थिंक ट्रू और फॉल्स बताना था. ओके. और एक क्वेश्चन आपका C++ में नेम स्पेस के रिगार्डिंग था, उसमें भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था. 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन थे. ओके गाइस. नेक्स्ट आपका लाइनक्स कमांड से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आए हुए थे, उसमें से एक तो आपका कुछ इस टाइप का था, -n इन ट्रेस रूट कमांड. एंड एक तो क्वेश्चंस और थे लाइनक्स कमांड्स पे, लाइक उसके कर्नल की इंफॉर्मेशन, कुछ सिस्टम वर्जन, इस तरह का कोई क्वेश्चन था. जिसको भी याद है क्वेश्चंस वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना. एंड द अदर क्वेश्चंस आपके थे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, अटैक से भी क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें एक स्नूपिंग भी था आपका, एक वर्चुअल लेंथ क्वेश्चन था, देन एक आपका NFA टू DFA का था, देन आपका FCFS डिस्क शेड्यूलिंग बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आया था गाइस. तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे आपके एग्जाम में आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था द मैक्सिमम लेंथ ऑफ 100 बेस TX इज.
एंड द आंसर इज़ 100 मीटर। केबल की लेंथ पूछी है आपको यहाँ पे 100 बेस TX मीन्स यहाँ पे 100 जो है वो स्पीड है 100 Mbps, बेस मीन्स बेस बैंड एंड यहाँ पे TX आपका ट्विस्टेड पेयर है और ये आपका फास्ट इथरनेट की फॉर्म है। ओके गाइस, सो इसकी जो लेंथ है वो होती है 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका OSI मॉडल से रिलेटेड था, लेयर बेस्ड क्वेश्चन था और ये आपको इसी एग्जैक्ट टेबल के फॉर्मेट में दिया था, जस्ट लाइक मैच द कॉलम आपको वहाँ पे करना था। सो इस तरह से आपको 4 लेयर्स दी थी, लाइक नेटवर्क लेयर जिसका मैच था राउटिंग, देन ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, डाटा लिंक लेयर पे एक्सेस कंट्रोल आना था एंड द फिजिकल लेयर का कुछ इस तरह से चैनल ट्रांसमिशन करके दिया था। तो यहाँ पे आपको मैच करने थे कॉलम्स। ओके गाइस, नेक्स्ट आपका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग था द क्वेश्चन, द सिग्नल विच सेंड्स एंड रिसीव्स डाटा इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। तो गाइस इसका आंसर था फुल डुप्लेक्स, जो कि बोथ डायरेक्शन में जब डाटा सेम टाइम पे जाता है तो उसको आप फुल डुप्लेक्स मोड बोलते हैं। अदर्स आर, एक होता है आपका सिंप्लेक्स और एक होता है हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विंडोज़ पार्टीशनिंग। सो वहाँ पे पूछा था व्हाट आर द पार्टीशन टाइप्स इन विंडोज़। तो गाइस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशंस, फर्स्ट इज MBR एंड सेकेंड इज GPT. सो MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड GPT स्टैंड्स फॉर GUID पार्टीशन टेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रजिस्टर. Which register is used to hold the next instruction to be fetched? So guys, answer is program counter. Program counter जो है next instruction के एड्रेस को होल्ड करता है, right? Guys, next प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे कुछ आपके पास, जिसमें आपके पास एरे बेस्ड प्रोग्राम था, ठीक है, और इसके नीचे मैंने आपको दे रखा है उसका फॉर्मेट। इस टाइप का आपको प्रोग्राम आया था जिसमें एक एरे डिक्लेयर किया था, एक कैरेक्टर बेस्ड एरे था, उसमें एक स्ट्रिंग जो स्टोर की थी, देन फिर इस एरे को आपने एक कैरेक्टर वेरिएबल में ही स्टोर करवाया था, देन नीचे प्रिंटफ स्टेटमेंट थी जिसमें आपका इस एरे की जो है इंडेक्स बेस पे एक एक्सप्रेशन सा दिया था। तो गाइस इस तरह का एक प्रोग्राम था और बाकी जो अदर प्रोग्राम्स थे, लाइक एक आपका फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम था जिसमें फंक्शन डिफ़ाइन किया था, एक उसमें पैरामीटर्स पास किए थे, देन उसको मेन के अंदर उस फंक्शन को कॉल किया था, उसमें वेरिएबल पास किया था। तो इसमें भी 2 प्रिंट स्टेटमेंट थी और आंसर में 2 वैल्यूज़ आनी थी। आई थिंक कोई एक गार्बेज वैल्यू आनी थी इसका आंसर। तो कुछ इस टाइप का प्रोग्राम था। एक आपका लूपिंग से रिलेटेड था जिसमें आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ किया था। देन एक प्रोग्राम आपका कंडीशनल ऑपरेटर पे था जिसमें बुलियन वेरिएबल्स थे, ट्रू फॉल्स, एंड उसमें आपको कंडीशनल ऑपरेटर का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ था। और ये वाले प्रोग्राम जो थे आपको एग्ज़ाम में आए थे। नेक्स्ट अगेन रिलेटेड टू IPv4 एड्रेसिंग. The question is the number of networks in IPv4 class C is. So guys इसका आंसर है 2⁻21. Guys as you know IPv4 एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है, राइट। सो आपने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स कैसे कैलकुलेट करने थे, क्लास C के अंदर जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड होते हैं, नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज टोटल 32 बिट का एड्रेस है तो टोटल 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है, राइट। तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो है वो नेटवर्क आईडी के होते हैं और लास्ट ऑक्टेट जो है वो होस्ट आईडी के लिए होता है। तो अब नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स फाइंड करने थे, तो नेटवर्क के लिए 3 ऑक्टेट्स है मीन्स 24 बिट्स। अब उसमें भी क्लास C के अंदर फर्स्ट 3 बिट्स जो है वो रिज़र्व रहती हैं, 1 1 और 0, तो ये रिज़र्व थी। तो 24 - 3 करोगे तो 21 बिट्स आएंगी नेटवर्क के लिए, तो आपके पास नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स 2⁻21 हो जाएंगे। तो ठीक है, इसका आंसर है 2⁻21। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन IP एड्रेस से था, विच इज़ वैलिड प्राइवेट IP एड्रेस पूछा था। तो गाइस आपको पता है IP एड्रेस में 4 रेंज डिफाइन है डिफरेंट क्लासेस की, ठीक है। एक 10 वाली रेंज होती है, 172 वाली रेंज होती है, देन 192 वाली रेंज होती है, 3 रेंज होती है, राइट।
सो यहाँ पर जो आपको 2 रेंज दे रखी थी प्राइवेट की, और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, तो कुछ ने 172 वाला किया है जो कि गलत था। एक्चुअली यहाँ पे राइट आंसर जो है इसका 192.168.0.0 से लेके 198.168.255.255 ये इसका करेक्ट आंसर है। और जो सेकंड 172 वाली रेंज थी उसमें जो एग्जैक्ट रेंज होती है डेट इज़ 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 दिस इज़ द करेक्ट रेंज। बट वहाँ एग्ज़ाम में आपको 172.61.0.0 से लेके 172 डॉट कुछ इस तरह से दी थी, जो कि गलत है, क्योंकि 16 से लेके 31 तक के बीच की वैल्यूज़ जो है वो वैलिड होंगी। लेकिन गाइस एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन में 172.61 दिया था, जो कि इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर जो है 192 वाला होना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो रिलेटेड था कीवर्ड से। कीवर्ड इन जावा, तो विच कीवर्ड इज़ यूज्ड इन जावा फॉर वेरिएबल्स। एंड गाइस इसका भी कुछ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बट इसका आंसर जो था वो स्टैटिक कीवर्ड होना था, राइट। नेक्स्ट आपका पाइथन से रिलेटेड था, वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन। सो वहाँ पे आपको ऑप्शंस में वैलिड वन बताना था, और वो आपको वेरिएबल के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है चेक करना था। तो रूल्स जो यही होते हैं वेरिएबल के कि उसका नेम जो है लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से, डिजिट से वो स्टार्ट नहीं हो सकता, और आपके आइडेंटिफायर के नेम में कोई भी अदर सिंबल यूज़ नहीं होना चाहिए अंडरस्कोर के अलावा। तो ये वाले रूल्स आप चेक करके वहाँ पे वैलिड आइडेंटिफायर जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट आपका डाटाबेस से रिलेटेड था, विच इज़ NoSQL डाटाबेस। तो ऑप्शंस में था MariaDB, MySQL, कैसेंड्रा, इन्फॉर्मिक्स एंड DB2। सो गाइस इसका राइट आंसर जो है वो कैसेंड्रा है, अपाचे का कैसेंड्रा। ये आपका NoSQL डाटाबेस है, राइट। नेक्स्ट आपके पास नेटवर्किंग के कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें एक न्यूमेरिकल था नंबर ऑफ सबनेट्स गिवन थे आपको 1024 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिफ़ॉल्ट मास्क, राइट। और भी न्यूमेरिकल थे, लाइक एक हेडर लेंथ गिवन थी आपको, एंड एक एड्रेस था, हेक्साडेसिमल एड्रेस गिवन था, इस तरह से कुछ, और आपको वहाँ पे नंबर ऑफ डाटा बाइट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स कुछ ऐसा कैलकुलेट करना था। एक और न्यूमेरिकल था कुछ IPv4 हॉप लिमिट से रिलेटेड था गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज जनरल पर्पस प्रोसेसिंग रजिस्टर, एंड द ऑप्शंस वर AR, DR, IR एंड PC। सो गाइस जिसको भी इसका आंसर पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना, इसका एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं है आंसर, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू AVL ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ द AVL ट्री विथ 12 नोड्स, एज्यूम द डिग्री ऑफ द रूट नोड इज 0। सो गाइस यहाँ पे वैसे तो जो हाइट होती है AVL ट्री की वो log2n होती है, राइट। और आप इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स हैं, एंड n इज इक्वल टू 2h + 1 - 1। आप ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप हाइट निकाल सकते हो, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नॉन HTTP स्कीम, विच वन इज़ नॉन HTTP स्कीम। सो ऑप्शन यहाँ पे थे FTP, टेलनेट, HTTPS और मेल2। तो गाइज इसका आंसर है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बट स्टिल गाइज एक बार ये आंसर मुझे कंफर्म करना, जिसको इसका पता है आंसर का, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना। नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड न्यूमेरिकल था, बैंकर्स एल्गोरिदम पे था। एक टेबल फॉर्म में आपको दे रखा था डाटा, प्रोसेसेस वगैरह, एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और मैक्सिमम नीड क्या है, और आपको फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ पॉसिबल सेव सीक्वेंसेस सो डैट कि डेडलॉक आकर ना हो। तो ये पूरा आपका बैंकर्स एल्गोरिदम पे बेस्ड था, जहाँ पे आपको सेव सीक्वेंस फाइंड आउट करने थे, ओके गाइस। So guys, this is all about SO mains exam, and I will provide more and more videos for upcoming exams. Thanks for watching this video, and if you have any query, any doubt, you can ask in the comment section. I hope you like this video. Kindly like and subscribe for more updates. Bye and take care guys.